Let's begin with today's session. So look at the first question. The yellow line, which was the news recently, it is what? It is nothing but a new buffer zone between the Israel and the Gaza Strip. So what Israel did, Israeli forces they advanced towards the Gaza Strip. They captured a certain portion of Gaza, and now it has become a new buffer zone between the Israel and Gaza, means Palestine, right? So look at this one, look at the map. You can see here the yellow line. So the yellow blocks more than 500 meters from the yellow line. तो यहाँ पे इसराइल के जो troops हैं वो stationed होंगे, and it would be acting as a new buffer zone between Israel and Palestine, right? चलिए, in where particularly in Gaza. So that would be a new buffer zone between the Israel and Gaza. So look at the next question, question number 2. With reference to the PEC Silica initiative, consider the following statements. First statement says, the PEC Silica is a US-led initiative aimed at securing the silicon and critical mineral supply chains essential for the artificial intelligence. The first statement is absolutely correct. This initiative is recently launched by America, but without India, right? So India is not there in this initiative, and that's why it was recently highlighted in the newspapers. So India is a founding participant of the PEC Silica initiative due to its large semiconductor market. The second statement is incorrect here, right? So which of these statements given above is oblique are correct? So correct answer would be A for Ahmedabad, right? Look at this one. Look at the explanation part. So the United States has launched the PEC Silica initiative with 8 other nations to build a secure silicon supply chain. The participating countries at the inaugural summit were America, obviously American-led initiative hai. So Japan, Republic of Korea, right? Singapore, Netherlands, UK, Israel, UAE, and Australia. And India has been excluded from the inaugural grouping despite its participation in the framework like ICET, Initiative on Critical and Emerging Technology, right? So this topic was in news recently. It's very critical for the examination. So look at the third question. With reference to the National Makhana Board, Makhana means foxnuts के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. Consider the following statements. The first statement says, it was recently inaugurated by the Prime Minister in Purnia, Bihar as part of the Union Budget 2025 initiative. It was promised in the 2025 budget, commitment tha budget ka. So the first statement is absolutely correct. Second statement says, the board aims to enhance the foxnut production, post-harvest management, value addition, and global exports. Again correct. The third statement says, the approved development package for the board amounts to crore rupees. This is also correct. So all these statements are correct here. Correct answer would be C for Calcutta 1, 2 and 3. Right? Correct पूछा हुआ है, याद रखिएगा. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. With reference to the suspension and resumption of Manrega in West Bengal, consider the following statements. First statement says, the Union Ministry of Rural and Development froze Manrega funds to West Bengal under Section 27 of the Manrega. Absolutely correct. The suspension was imposed in March 2022 due to the allegations of corruption, non-compliance, and with central directives. It is again correct. Look at the third statement. Section 27 of the Manrega, it empowers the state governments to suspend the scheme in case of financial irregularities. No, this statement is absolutely incorrect. Look at the first statement and the third statement. कॉमन सेंस की बात है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो थर्ड नहीं हो सकता, और अगर थर्ड है तो फर्स्ट नहीं हो सकता, राइट? Why? Because it is clearly written here, the Union Ministry of Rural and Development frozen the Manrega funds for the West Bengal under Section 27 of the Manrega Act, right? ये सेंटर का पार है, यूनियन का पार है, ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट का पार है. So third statement is ruled out here. Question पूछा है which of these statements given above is oblique are correct. So correct answer would be 1 and 2. So A for Ahmedabad would be the correct answer, right? Now let's move on to the next question. But before that, let us see the explanation part. देखिए सेक्शन 27 जो है बेहद लाइक इंपॉर्टेंट है मनरेगा एक्ट का अभी प्रेजेंट सिनेरियो में. अब बेसिकली व्हाट इज द मैटर, मार्च 2022 में यूनियन गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम को वेस्ट बंगाल में सस्पेंड कर दिया था बाय इन्वोकिंग सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा एक्ट.
अब सरकार प्रेजेंट में इस स्कीम को रिव्यू करने के लिए सरकार ने एक कमिटी भी बनाई है और एक कमिटी इसको रिव्यू कर रही है। अभी तक के जो कमिटी की मेजर रिकमेंडेशन सामने आई हैं उसमें से पहली मेजर रिकमेंडेशन है कि इसका जो नाम है मनरेगा स्कीम का, इसको चेंज कर दिया जाए। ये अभी जैसे प्रेजेंट में है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको चेंज करके पूज्य बापूजी के नाम पे रख दिया जाए। ठीक है, मतलब ऑलरेडी महात्मा गांधी के नाम पे है, उसको रीनेम कर दिया जाए। ऑल्दो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, बट ये रिकमेंडेशन है। सेकेंड रिकमेंडेशन है कि जो प्रेजेंट में जॉब गारंटी है वो 100 डेज की जॉब गारंटी है, 100 डेज का लीगल वर्क आपको मिल रहा है, लीगल गारंटी मिल रही है, इसको एनहेंस करके 150 डेज कर दिया जाए। दिस वन इज गुड। तो ये रिकमेंडेशंस याद रखिएगा। ये कौन सी कमिटी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द कमिटी विच वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू रिव्यू द मनरेगा स्कीम, राइट। और बेसिकली केस क्या है इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको वेस्ट बंगाल में सस्पेंड किया। इसके बाद वेस्ट बंगाल में जो अफेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये पहुंचते हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, एंड कोलकाता हाई कोर्ट ने अगस्त 24-25 में जो डिसीजन है ये वेस्ट बंगाल के फेवर में दिया और सेंटर को डायरेक्टिव्स दिए कि वो इसको वापस से री कर दे वेस्ट बंगाल में। अब सेंटर इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सेंटर को डिफीट मिलती है और सेंटर को डायरेक्टिव्स मिलता है सुप्रीम कोर्ट से कि एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू re-implement the scheme in West Bengal. Understood? So मनरेगा स्कीम इज इन न्यूज रिसेंटली। अब ये भी याद रखिए आप यहाँ पे किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का की ड्यूटी किस डिपार्टमेंट के पास में, किस मिनिस्ट्री के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Indian Constitution deals with the right to work? See, right to work is not a fundamental right. Clear? It is prescribed under Article 41 of the DPSP, Directive Principle of State Policy, which is not enforceable in the court of law. Understood? सो क्योंकि मनरेगा न्यूज में है, मनरेगा की वजह से आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ सकता है, राइट टू वर्क पूछ सकता है। सो डू रिमेंबर राइट टू वर्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डीपीएसपी एंड इट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 41। और ये देखिए हमने कमेटी के नाम को भी यहाँ पे क्लब कर दिया है। तो ये अमरजीत सिन्हा, ये बेसिकली अमरजीत सिन्हा कमेटी है विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द लोअर मनरेगा एक्सपेंडिचर इन पुअरर स्टेट्स कंपेयर टू दी रिचर स्टेट्स। तो जो स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटी है मनरेगा स्कीम को लेकर के और जो इरेगुलरिटीज हैं मनरेगा स्कीम में, उन लूपहोल्स को फिलअप करने के लिए और इस स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज अमरजीत सिन्हा कमेटी, राइट। सो आर्टिकल 41 एंड हमने इसको क्लब किया। बेसिकली आर्टिकल 41 से हमने क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया, बिकॉज ऑफ द मनरेगा स्कीम, राइट। क्योंकि वहां पे क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है 100 डेज का legal work guarantee. Now let's move on to the next question. Look at the question number 6. Thailand shares its land border with which of the following countries? See, we have framed this question keeping in mind the present land border dispute between Thailand and Cambodia. अब basically what is happening, Cambodia जो है एक former French colony है and Cambodia और Thailand की जो common border है उसका जो demarcation है वो early 1900 में किया था यहाँ पे फ्रांस ने। अब प्रेजेंट जो डिस्प्यूट है दैट इज बिकॉज ऑफ दी ओवरलैपिंग क्लेम्स ओवर दी टेरिटरीज एंड पर्टिकुलरली कुछ एंशिएंट टेम्पल्स हैं जिसपे क्लेम को लेकर के इन दोनों कंट्रीज के बीच में फ्लेयर अप हुए हैं अभी रिसेंटली, एंड इसलिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। अंडरस्टूड? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट वुड बी दी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड मलेशिया, राइट। करेक्ट आंसर इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड मलेशिया। एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से जो एक ट्रायंगल आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये कैसी कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है बिटवीन म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। वी कॉल इट द गोल्डन ट्रायंगल। एंड गोल्डन ट्रायंगल किस लिए फेमस है, बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे ड्रग्स का प्रोडक्शन भी है और ड्रग कार्टेल यहाँ पे काम करता है। सो डू रिमेंबर दिस इज लाइक अ क्रिटिकल फैक्ट। एग्जामिनर इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए आप, एक्सप्लेनेशन पार्ट में यू कैन सी हियर the two countries have been involved in a long running dispute over the interpretation of the land border.
demarcation mapped by France during its colonial rule of Cambodia in the early 1900. Both interpret these maps differently, right? अभी हमने just discuss किया, you can see in the map, यहाँ आप देख सकते हैं मैप में ये थाईलैंड है और थाईलैंड forms its border with land border with Laos, with Myanmar, with Cambodia and with Malaysia, right? It also has a huge coastal area with the Gulf of Thailand and Andaman Sea, right? मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द फेयर एंड द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ शुगर केन, इट इज अप्रूव्ड बाय होम. ये यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है और अभी हाल ही में एफआरपी प्राइसेस जो हैं शुगर केन के लिए उसको सरकार ने अनाउंस किया है. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. नाउ डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. अब यहाँ जो प्राइस का रिकमेंडेशन है वो 100% देता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. तो सीएसीपी का काम है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का. तो सीएसीपी क्या करता है, ये बेसिकली प्राइस का कैलकुलेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स और उसको रेकमेंड करता है किसको, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड? तो अल्टीमेट अप्रूवल कौन देता है? अल्टीमेट अप्रूवल देने का काम है यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए का. करेक्ट आंसर होगा ए फॉर अहमदाबाद, दैट वुड बी सीसीईए. सो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन हियर एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट द fair and remunerative prices, it is based on the Rangarajan committee report on reorganizing the sugarcane industry, राइट? इस शुगर केन इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करना, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था. इट वाज रंगराजन कमेटी. तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही एफआरपी मिलता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जस्ट अ मोमेंट. द मोनरो डॉक्ट्रीन, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज यूएस फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल दैट. अब प्रेजेंट में ये न्यूज में है और इस डॉक्ट्रीन को रिवाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, राइट? तो ट्रंप इसको रिवाइज कर रहे हैं एंड ये बेसिकली क्या है, इट अपोजेस द यूरोपियन इंटरवेंशन in the western hemisphere which is led by America, while the US maintains the policy of neutralities in the European conflicts. So basically एक mutual understanding है between the Europe and the USA. तो USA कहाँ किसको लीड कर रहा है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर को. तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अमेरिका इज लीडिंग एंड अमेरिका वोंट बी एक्सेप्टिंग एनी यूरोपियन इंटरफेरेंस इन इट्स क्रिटिकल मैटर्स. सिमिलरली यहाँ पे अमेरिका यूरोपियन मैटर्स में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा. अंडरस्टूड? सो याद रखिए करेक्ट आंसर वुड बी बी फॉर बॉम्बे. और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लब्ड है एंड दैट इज फ्लेक्सिबल रियलिज्म. तो इस साल हो सकता है कि पीएसआईआर के पेपर में आपसे फ्लेक्सिबल रियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, राइट? सो लुक एट दिस वन. द यूनाइटेड स्टेट विल रीअसर्ट इटसेल्फ इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, build the military strength in the Indo-Pacific, and possibly reassess or review its relationship with Europe. Donald Trump said in a sweeping strategy document that seeks to reframe the country's role in the world. Clear? और यहाँ पे जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया इसको? He described Trump's vision as one of the flexible realism. Clear? So you need to understand that as per the concept of realism, right, it refers to a scenario where like anarchy is there in across the world. अब क्योंकि anarchy is there और जो nation states हैं, इन नेशन स्टेट्स को सुपरवाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है. तो वर्ल्ड कैसी स्टेट में है? वर्ल्ड इज इन एनार्कियल स्टेट. और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में जो रियलिज्म है उसमें बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं जिससे रियलिज्म जो है वो ड्रिवन होता है, पॉलिसी ऑफ रियलिज्म, राइट? तो ये कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? यू कैन अंडरस्टैंड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट सेंटरिज्म. तो स्टेट का जो जो मोटिव है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट इज सुप्रीम. सो स्टेट सेंटरिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, सेल्फ हेल्प and power and security. So I hope you guys understood that realism that assumes that international system is anarchic, meaning there is no overreaching authority above the sovereign states. In such a system, each state acts as a rational and unitary actor, primarily concerned with its own survival and national interest. Is that understood, दोस्तों? So always remember
that the concept of realism is driven by the four important factors: state centrism, self interest, power and security, and the national interest. Right? आपने सुना होगा that there is nothing permanent in this temporary world, and the one and only thing which is permanent is the national interest. Clear? तो इस दुनिया में ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन. अगर कुछ इंटैक्ट है तो वो है नेशनल इंटरेस्ट. सो फाइनली वी आर डन विद टुडे सेशन. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में कल. राइट? सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.